News for you viewers. India and New Zealand have signed a landmark free trade agreement today, April the 27th, 2026 in New Delhi, marking a major boost to bilateral economic ties. The agreement, concluded after fast-track negotiations, grants 100% duty-free access to all Indian exports to New Zealand, and in return, tariffs on approximately 95% of New Zealand's exports to India will be sharply reduced or eliminated. Commerce Minister Piyush Goyal and New Zealand's Trade Minister Todd McClay led the final outreach with industry leaders ahead of the signing. New Zealand Prime Minister Christopher Luxon described the deal as a historic opportunity for Kiwi exporters to access India's massive 1.4 billion consumer market. Aditya Madhavan is joining me on this very important story. Aditya, what more can you tell our viewers? Aditya, am I audible to you? All right. All right, we seem to have lost that connection there, but we'll try and re-establish that. But of course, viewers, this is a big breaking, very important story that we're sharing with you on NewsX at this hour. India and New Zealand have signed a landmark free trade agreement today, and Yash Ahuja is joining me with more details. Over to you, Yash. Yes, Vaishali. So, India and New Zealand have finally signed the landmark free trade agreement today on April 27th. Visuals of that on your screens. That's Piyush Goyal, Union Minister for Commerce, sitting with Todd McClay, which is the which is a Minister of Trade in New Zealand. Now let's take a look at some key highlights that will help us understand the free trade agreement more. First of all is 100% tariff elimination on Indian exports to New Zealand. So everything that is exported to New Zealand from India will now have 0% tariff as soon as this FTA is put into action. Secondly, 95% tariff reduction on New Zealand exports to India. So whatever we import to India from New Zealand, 95% tariff has been reduced or removed as soon as the FTA is in action. Moreover, there is focus on market access for dairy, agriculture products, manufacturing and services, which is expected to overall generate employment and economic growth in both countries. Yes, it is a very historic signing. It has happened at a very historic location at the Bharat Mandapam in the national capital. Back to you. All right, Yash, thanks for joining me. Now, Union Home Minister Amit Shah has exuded strong confidence in the BJP's prospects in West Bengal, declaring that the BJP is definitely going to form the government in the state. Addressing a public rally in Kolkata, Shah said, "Where is the fear? We have to implement the Uniform Civil Code. Our agenda is that there cannot be forced marriages in India." He further claimed that the ongoing West Bengal Assembly elections are being peacefully held, stating that so far no major incidents of violence have been reported. Not a single death has occurred. Amit Shah's remarks come as the BJP intensifies its campaign across the state, aggressively pushing key issues including the implementation of UCC. Let's listen in. अब बीजेपी सत्ता में आ रही है बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी चैलेंज कर रही है कि यहाँ पे फिर से तृणमूल की सरकार आ रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जिस तरह का ममता बनर्जी एक सबके सामने जाके बोल रही है कि बीजेपी सत्ता में आई तो यूसीसी लागू कर देगी, एनआरसी करेगी, लोगों को मनों में भय जो पैदा कर रही है। नहीं, कहाँ भय? करना ही है, हमें यूसीसी लागू करना ही है। हमारा तो एजेंडा है। यहाँ भारत में 4 शादी नहीं हो सकता। एनआरसी को लेके भी वो ऐसे बोल रहे हैं कि एनआरसी लागू कर देंगे, राज्य का विभाजन कर देंगे, ऐसी बातें कर रही है। कोई राज्य का विभाजन नहीं होगा।
क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार कल जैसे देखा गया सर जगतदल में देखा गया है सेंट्रल फोर्स इतना एक्टिव है, इलेक्शन कमीशन काम कर रही है। अब तक कोई हिंसा की घटनाएं बड़ी सामने नहीं आई, एक भी मृत्यु नहीं हुआ है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। आप लोगों ने जिस मुद्दे को आप लोगों ने इस बार चुना है सर, जिस तरह से महिला सुरक्षा, घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा आप लगातार कह रहे हैं। आपने खुद ये कहा है कि आप लगातार कोशिश कर रहे हैं राज्य सरकार से जमीन को मामलों को लेकर, लेकिन अभी तक कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाहिए, घुसपैठिया महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा, बीजेपी के फेवर में वोट आएगा? स्वाभाविक रूप से इस पर ही वोट पड़ेगा। क्या कहना चाहिए? हो गया है। All right, I have Sanjay Sharma joining me with more details. Sanjay, अमित शाह ने कहा है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी बंगाल में। उसके बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? All right, we have Brian Thomas joining me. Brian, there's a lot of confidence that Amit Shah has exuded when it comes to BJP's victory in Bengal. What more can you tell us? Clearly, even to the fact when the union minister was holding road shows, he seemed very confident, and there was a different kind of a body language that kind of emoted how confident the Bharatiya Janata Party is, how confident the Home Minister is. He is here for 15 days, and we are also on ground here at Pani Hati, which is another hot seat after Bhawanipur, because this is the place where the very incident that shook the entire nation. That was the Arjikar, the mother of the Arjikar victim, Ratna Devnath, is standing also. We are joined by some voters here. Sir, पहले मैं आपसे जानने का कोशिश करूँगा, आगे आ जाइए। आपका नाम बता दीजिए पहले। सुमन कुंडू। सुमन जी, अभी हम एक ब्रेकिंग ले रहे हैं जहां ये बताया जा रहा है कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर, वो काफी देर से यहाँ है, वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं जब वो स्पीचेस दे रहे हैं, वो रोड शोज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी है। और वही नहीं, प्रधानमंत्री भी यहाँ आए हुए हैं, बैरकपुर में वो रोड शो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। आप बताइए माहौल क्या है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और आपकी सीट के भी बारे में बताइए, क्या क्या मुद्दे हैं, इश्यूज है जो ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये जो साल 2026 में जो चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी सरकार आएगा पश्चिम बंगाल में, बट जरूरत है बीजेपी का जो पश्चिम बंगाल में जो पूरा स्टेट को जो सामने वाला जो इंजन ममता बनर्जी लेके चल रहा है, उनका इंजन में कोई पावर नहीं है, ठीक है। और इसके लिए डबल इंजन सरकार, जो बीजेपी का डबल इंजन सरकार वो चाहिए स्टेट पे। और आप लोग को मालूम है कुछ दिन पहले कस्बा लॉ कॉलेज, उसका पहले जो पनियाटी का जो कैंडिडेट रत्ना देवनाथ, उनका लड़की अभया का रेप हुआ। ये जो रेप, मर्डर, जो खून बहुत ज्यादा हो गया पश्चिम बंगाल में, तो ये सब चेंज करने के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर पे काफी बात हो रही थी कि हम जहाँ है वहाँ वो एक हादसा हुआ था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, झंझोड़ के रख दिया था। क्योंकि आप भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ के वोटर हैं, आप भी वोट डालने वाले हैं 2 दिन बाद। आप बताइए क्या मुद्दे क्या है, औरतों की सुरक्षा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी सुरक्षा कितना ज्यादा होना चाहिए औरतों का इस समय? नहीं, मेरा घर पे तो मेरा लड़की है, मेरा माँ है, ठीक है। जिसका साथ हुआ बहुत गलत काम हुआ। और जो टीएमसी वाला जो कैंडिडेट है, उनका पापा ही इसका मेन कारीगर है, जो अभया का डेड बॉडी उधर से निकालने के लिए, और जो दावा हो गया मेरा अभया का जो डेड बॉडी, उसका पूरा जो काम उनका पापा ही किया। तो पश्चिम बंगाल बहुत खतरा में है तृणमूल का हाथ, तो इसका जरूरत है परिवर्तन। आपका नाम बता दीजिए सर। जीत रॉय। क्या नाम है? जीत रॉय। टीम जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, हम पानी हाटी में है, तो पानी हाटी में क्योंकि आप खुद एक वोटर है, वोट डालने वाले, पानी हाटी में क्या ये समस्या क्या है, इश्यूज क्या है, मुद्दे क्या है जिसको दिमाग में रख के आप परसों वोट डालने वाले हैं? क्या क्या इश्यूज जो ठीक नहीं हुआ है, जो ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है? इश्यूज तो बहुत है, बताइए क्या क्या है। सीट क्या है ना, इधर में सब कुछ खराब है, रास्ता ठीक नहीं है, लड़की लोग बाहर में नहीं जा सकते, ठीक है, बहुत रेप होता है। और जो टीएमसी का जो लीडर है ना, इधर में बहुत मतलब क्या है ना, अपना मर्जी से अपना काम करता है, किसी से पैसा लेता है, किसी को मारता है, किसी को धमकाता है, सब वो लोग। धमकी भी होती है? हाँ, होती है, बहुत धमकी होता है इधर। आप लोग को तो पता ही होगा क्योंकि आप लोग भी देखे, बहुत धमकी होता है इधर में, बहुत कुछ होता है।
लेकिन अभी क्या है ना, अभी तो वो लोग सरकार में है, वो लोग का पावर है, इसलिए वो लोग जो मन चाहता है वही करता है, जो मन चाहता है वही करता है। ये तो करना नहीं चाहिए ना। और मुद्दे क्या क्या है आपने जैसे बताया, एक तो आपने बताया कि औरतें बाहर नहीं निकल सकती रात, क्योंकि वो सुरक्षा शायद महसूस नहीं Bane करती। rahe, stay on with me, Brian. I have Mr. Jayaprakash Majumdar. He's the TMC Vice President joining me. Mr. Majumdar, of course, Amit Shah has exuded a lot of and very strong confidence on the victory of the BJP in Bengal. What would you like to say on that? No, why he is raising national issues in a state election? That we don't understand. UCC is a national policy, it is being discussed, and there are many aspects involved in the implication of UCC. While our constitution was presented, the architect of the constitution said that this is a very sensitive issue involving all the religious matter, religion dictates, etc. Hence, it should be handled with care and soft hands. Amit Shah being the Home Minister, why he is raising contentious issues in a state election? What he wants actually? Division of the society or unification? Already BJP leaders are saying, Assam Chief Minister said that we will exchange bullets with Bengal. Very dangerous approach. Other leaders like Jogi said, in Bengal we will bring bulldozers from UP. Very dangerous approach. And now Amit Shah is raising... Mr. Majumdar, please stay on with me. I'll come back to you. I have Mr. Samik Bhattacharya as a BJP. He is, of course, the BJP West Bengal president. And Mr. Bhattacharya, you've, of course, heard Mr. Majumdar. Would you like to react and respond to the fact that he's saying that why is the BJP raising the issue of UCC? I don't want to participate in any debate. It is over. Trinamool is no more. From Gangotri to Ganga Sagar, double engine government will be formed under the able leadership of Sri Narendra Damodar Das Modi ji. This is the first time the Shama Prasad Mukherjee's government will be formed in Shama Prasad Mukherjee's land. The society has been divided by Trinamool Congress by their divisive politics. Entire demography of our border districts have been changed. Internal security of this country is being compromised. And now, the people of West Bengal, they have applied their mind. For the sake of the nation, they will oust Trinamool Congress under any circumstances. Trinamool Congress is past. Trinamool Congress is no more. It is not only a government is passing away. I think the political party named All India Trinamool Congress will be collapsed, will be perished like anything. Thank you. Thank you, Mr. Bhattacharya, for joining me on the broadcast. And now PM Narendra Modi is holding a roadshow in Barrackpur as campaigning intensifies ahead of the second phase of polling in West Bengal. The next phase of elections, viewers, is scheduled for April 29 with counting set for May 4. The roadshow is seen as a key push by the BJP to mobilize voters in the region amid a high-stakes electoral battle. Brian Thomas is joining me with more details. Brian, of course, all eyes on these particular dates that we've mentioned. What more can you tell our viewers? Well, yes, just a while back, the Prime Minister was holding a roadshow in Barrackpur itself. We have some people who will be talking to them. आपका नाम बताइए। सोमजी जी, अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे बैरकपुर में। उसके पहले जगतदला एक जगह है पुलिस स्टेशन में, वो वहाँ कुछ अफरा तफरी भी मची। वहाँ सीआईएस के जवान को वहाँ वो काफी ज्यादा उनको गोली भी लगी, वो हॉस्पिटलाइज भी हुए। और ये हुआ कुछ देर पहले पीएम के रैली पे, पर उससे कुछ
दिक्कत नहीं हुआ पीएम ने फिर की रैली। क्या बताइए, ये जो पूरा बीजेपी गवर्नमेंट आया यहाँ हुआ है, सारे जो बड़े नेता है, लीडर्स है, सीनियर लीडर्स आए हुए, प्राइम मिनिस्टर डेली रोड शोज कर रहे हैं, क्या मायने रखता है इन लीडर्स का यहाँ आना? और पूरे रोड शो के बारे में भी बताइए, जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ आके रोड शो कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जो इतना सारा हमारे सेंट्रल लीडर जो ये पश्चिम बंगाल में आ रहा है, ये ऐसे देख रहे हैं जो सेंट्रल मिनिस्ट्री भी समझ पा रहा है, या हमारा वर्तमान जो प्रदेश सरकार है वो भी समझ पा रहा है जो हमारे प्रदेश में भाजपा सरकार गढ़ने में कुछ ही दिन बाकी है। इसलिए ये वर्तमान प्रदेश सरकार डर रहा है। डर के वजह से ये देख पा रहे हैं जो हर जगह पे ये संतरस छेड़खानी ऐसे मुद्दे पे काम करना चाह रहा है। कुछ दिन पहले मैंने देखा भटपाड़ा में ऐसे केस हुआ, उससे पहले देखा हम इलेक्शन में उसने गुआबाजी ऐसे इससे काम करने के लिए कोशिश किया, मगर हमारा प्रधानमंत्री और हमारा सेंट्रल समस्या केंद्रीय मंत्री के रहने पर यह पर जो परिस्थिति हुआ उसमें इलेक्शन एजेंसी अच्छी तरीके से काम कर रहा, इसलिए हमारे इधर में ऐसे कोई हरकत कोई संतोष नहीं। हम चाहते हैं हमारा जो 29 तारीख का वोट है हमारे इधर भी कोई संतोष ना छोड़े। और ऐसे है, देखिए आप कुछ दिन पहले ही देख सकते थे, ये इधर में जो यूथ का जो रैली गया था, ये वर्तमान प्रदेश का जो सरकार था, वो सरकार के मिशन में ये रैली में भीड़ नहीं हो रहा है, और हमारा कैंडिडेट हमारा रैली पे उनसे प्राय 10 गुना भीड़ ज्यादा है। और मैं और भी लोगों से बात करूंगा, वो प्रधानमंत्री यहाँ रैली कर रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या मायने रखता है कि प्रधानमंत्री, ये भारत को ज्यादा दूर है नहीं यहाँ से, और कितना मायने रखता है कि प्रधानमंत्री आपके एरिया में आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं? यहाँ के जो कैंडिडेट है रत्ना जी भी, उनके साथ भी उन्होंने एक रोड शो रखा था, जनसभा रखा था, कितना मायने रखता है प्रधानमंत्री का यहाँ आना और रोड शो करना? प्रधानमंत्री चाहते हैं देश जैसे सुरक्षित है वैसे ये स्टेट भी सुरक्षित रहे। ये स्टेट में कुछ भी संविधान के अनुसार नहीं हो रहा, इसलिए वो खुद आना चाहते हैं, खुद देश का जो भी प्रजा है वो ठीक से रहे, वो ऐसे चाहते हैं। इसलिए वो खुद आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, और दूसरे प्रदेश के मिनिस्टर भी आते हैं, सीएम भी आते हैं, खाली सी बात। अच्छा वैसे अगर मैं पानीहाटी में थोड़ा इंटरप्ट करूँ सर आपको, पानीहाटी की अगर बात करें, यहाँ क्या सब चीजें शांतिपूर्वक होती है? यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है? नहीं क्या होता है यहाँ, बताइए तो, यहाँ का स्थिति बताइए। अगर मान लीजिए शुरू से यार मान एक तो उनका स्टेट हाईवे तो खराब नहीं बना है, आज भी 15 साल में एक भी स्टेट हाईवे नहीं है, रास्ता उनका एक भी ठीक नहीं। अगर कोई घर भी करना चाहता है उसको पैसा देना पड़ता है। आपको खाली एक चीज में पैसा मिलता है, अगर आपका घर की रेप होता है तो आपको पैसा मिलता है, बाकी आप कुछ भी काम, आप एक पैर भी बाहर फेंके तो आपको पैसा मिलता है। अच्छा ये जो वेलफेयर ऑर्डर, ना लॉ है ना ऑर्डर है, कुछ भी नहीं। और ये जो टीएमसी बता रही है कि उन्होंने काफी सारे वेलफेयर स्कीम स्टार्ट किया है, उस पे आपका क्या कहना है? उसके अलावा बीजेपी ने भी अगर काम होता तो काम देना नहीं पड़ता, जाहिर सी बात है, काम नहीं हुआ तभी तो देना पड़ता है ना। तो वो होता, अगर सुबह से नौकरी मिलता और आपकी नौकरी में काम है नौकरी मिलता तो 1,500 कुछ रुपए आपने नौकरी की भी काफी समय लोगों से बात कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट से काफी ज्यादा बात गया, वो पैसे लगे दिया था नौकरी, तो बात क्या है। अगर वो सब नहीं बात करता और भी रिक्वायरमेंट होता तो 1,500 नहीं देना पड़ता। और यूथ की बात करें, यूथ क्या चाह रही है? यूथ का क्या डिमांड है इस समय? यूथ क्या चाह रही है? बीजेपी चाह रही है तो नौकरी ही चाहिए, हमें यही नहीं चाहिए घर में बैठे रहे, 1,500 में क्या होगा, हमको नौकरी ही चाहिए। All right, Ryan, stay on with me. I'll come back to you. And viewers, April 29 and May 4, NewsX has a very big coverage lined up for you on these two dates. So this is the channel to watch out for on these two dates, of course. Now, viewers, West Bengal Minister and TMC candidate Firhad Hakim has exuded confidence of a sweeping victory for the Trinamool Congress in the ongoing assembly elections. Addressing supporters, he claims the party is set to win around 235 seats, calling it a historic mandate. Hakim also takes a swipe at Narendra Modi and Amit Shah, saying once they leave, they will not return to Bengal, underlining the high-pitched political battle in the state, of which NewsX will be getting you every detail. Let's listen in. এটা অত্যন্ত সিরিয়াস এবং এটা আমি জানি না আপনি হঠাৎ বললেন, এটা পুলিশের কাছে আমি খবর নিয়ে তারপর বলবো। এটা মুর্শিদাবাদে বললো, এটা আমি যেটা জানি। Brian, back to you on Firhad Hakim's statement. What more can you tell us? Yes, clearly, एक सवाल आपसे, अभी हम एक स्टेटमेंट
चला रहे थे अपने चैनलों में, फिराद हकीम जो मिनिस्टर भी है, टीएमसी गवर्नमेंट लीडर भी है, वो एक प्रेडिक्शन कर रहे थे कि अगर टीएमसी पावर में आती है, अगर टीएमसी की सरकार बनती है, और वो काफी कॉन्फिडेंट है कि टीएमसी की सरकार बनेगी, और उन्होंने ये भी प्रेडिक्शन किया है कि टीएमसी जीतेगी और 250 सीट लेकर जीतेगी। वो रोड शो कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये कहा कि 250 सीट उनको मिलेगा, और ये इस समय काफी ज्यादा सुनिश्चित है कि टीएमसी ही सरकार बनेगी। उस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आपको भी वोटर है, आपको आम आदमी, आप परसों खुद वोट करने वाले, आप पानिहाटी की क्रूशल हॉट सीट भी है, वो आपको क्या कहना है? देखिए, ये जो साल 2026 का जो चुनाव हो रहा है, इसमें टीएमसी 2 डिजिट नहीं मिलेगा टीएमसी का। अच्छा, ये जो करप्शन जो है पश्चिम बंगाल में, 26,000 लड़का का चाकरी चला गया, लड़का लड़की को, यूथ को कोई फ्यूचर नहीं है, नारी का कोई सुरक्षा नहीं है कोई पश्चिम बंगाल में, बहुत करप्शन है उनका। सुबह है, युवती है, सब लोग चाह रहा है जे परिवर्तन। आपका नाम बताओ, थोड़ा आगे आ जाइए। आपसे भी जानना चाहूंगा यही स्टेटमेंट के बारे में जो अभी हम चला रहे थे, कि इन्होंने तो अपना प्रेडिक्शन किया है कि 2 डिजिट भी नहीं मिलेगा। आप बताइए, आपको प्रेडिक्शन क्या कहना है? क्योंकि फिराद हकीम ने एक प्रेडिक्शन कर दिया है कि हमको 250 सीट हमको मिलेगा। आप कॉमनर है, मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा कितना सीट आपको लग रहा है टीएमसी को मिलेगा इस बार, क्या है? क्योंकि वो काफी कॉन्फिडेंट है। वो तो मैं बोल सकता हूँ बीजेपी सरकार आएगा। शिक्षा हमारे पानियाटी में तो माँ को भी जीतेगा, तो पूरा देश जीतेगा, पूरा पानियाटी जीतेगा, सब जीतेगा, माँ को जीतना ही होगा। बोलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Yes, Bashali. Right, I'll come back to you, Brian. Now, amid the heated West Bengal election battle, Union Minister Prahlad Joshi has taken a swipe at the opposition, citing remarks by Rahul Gandhi. Joshi said it was Rahul Gandhi who claimed that Mamata Banerjee has opened the gateway for the BJP, distancing himself from the statement while using it to attack rivals. The comment adds to the war of words as political rhetoric intensifies in the state. Let's listen in. That's why I said I would not like to talk about the politics now, but I can only say Rahul Gandhi himself has said that Mamata Banerjee has opened the gateway for the BJP. This is what Rahul has said. I have not said. Mamata Didi has opened the gate for the BJP. Who has said this? I have not said this. Rahul has said. Now, AAP National Convener Arvind Kejriwal has extended his support to Mamata Banerjee ahead of the ongoing elections in West Bengal. Addressing the political situation, Kejriwal says the people of the state are strongly resisting what he calls dictatorship and claims that the mood on the ground suggests a backlash over alleged voter list issues. His remarks add to the intensifying political rhetoric as the election battle heats up. Let's listen in. मैं ममता दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस चुनाव के लिए। बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से वो तानाशाही के खिलाफ, तानाशाहों के खिलाफ बंगाल की जनता डट के लड़ रही है, और पूरा जो मैं 2 दिन में देखा, पूरे बंगाल का माहौल है कि जो ये दिल्ली से अमित शाह और मोदी जी आए हैं और बंगाल को तहस नहस करना चाहते हैं, 90 लाख लोगों के वोट काट दिए उन्होंने, इसका बंगाल बदला लेगा, इस पे चुप नहीं रहेंगे। And viewers, it's now time for a short commercial break, but a lot more coming up on the other side. Stay tuned to NewsX.